जेनेसिस 38 चैप्टर 39 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, इन वचनों के अंदर से भेद रहस्य हमको बता ताकि हमारा आज्ञा पालन बढ़ जाए, परमेश्वर का भय हमारे अंदर और ज़्यादा हो जाए और परमेश्वर चाहता है वो मार्ग से चलना हमें आसान हो जाए। हमारी सहायता करो परमेश्वर के आत्मा, ये सारे वचन हमारे जहन में उतरने के लिए, मन में उतरने के लिए, हमारे आत्मा में उतर कर आने के लिए हमारी सहायता करो। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 38, जेनेसिस चैप्टर 38। ज्यूडा begetteth Er, Onan, and Shelah. Er married Tamar, the trespass of Oman. Tamar deceiveth Judah. She beareth twins, Pharez and Zara. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। एंड इट केम टू पास एट दैट टाइम दैट जूडा वेंट डाउन फ्रॉम हिज ब्रेदरन एंड टर्न्ड इनटू अ सर्टेन Adullamite, whose name was Hira. And Judah saw there a daughter of certain Canaanite, whose name was Shua. And he took her and went in unto her. And she conceived and bare a son, and he called his name Er. And she conceived again and bare a son, and she called his name Onan. And she yet again conceived and bare a son, and called his name Shelah. And he was at Chezib, and she bare him. And Judah took a wife for Er, his firstborn, whose name was Tamar. And Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord slew him. And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother's wife and marry her, and raise up seed to thy brother. And Onan knew that the seed should not be his. And it came to pass when he went in unto his brother's wife that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. And the thing which he did displeased the Lord, wherefore he slew him also. Then said Judah to Tamar his daughter-in-law, Remain a widow at thy father's house, till Shelah my son be grown. For he said, Lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father's house. And in process of time, the daughter of Shua, Judah's wife, died. And Judah was comforted and went up unto his sheep shearers to Timnath, he and his friend Hira, and the Adullamite. And it was told Tamar, saying, Behold, thy father-in-law goeth up to Timnath to shear his sheep. And she put her widow's garments off from her, and covered her with a veil, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath. For she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife. When Judah saw her, he thought her to be an harlot, because she had covered her face. And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee. For he knew not that she was his daughter-in-law. And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me? And he said, I will send thee a kid from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge till thou send it? And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet and thy bracelets and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came it in unto her, and she conceived by him. And she arose and went away, and laid by her veil from her, and put on the garments of her widowhood. And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite to receive his pledge from the woman's hand, but he found her not. Then he asked the men of that place, saying,
Where is the harlot that was openly by the wayside? And they said, There was no harlot in this place. And he returned to Judah and said, I cannot find her. And also the men of the place said that there was no harlot in this place. And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed. Behold, I sent this kid, and thou hast not found her. And it came to pass about 3 months after that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter-in-law hath played the harlot, and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt. When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, By the man whose this are am I with child? And she said, Discern, I pray thee, whose are these? The signet and bracelets and stuff. And Judah acknowledged them and said, She hath been more righteous than I, because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more. And it came to pass in the time of her travel that, behold, twins were in her womb. And it came to pass when she travelled that the one put out his hand, and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first. And it came to pass as he drew back his hand, that behold, his brother came out, and she said, How hast thou broken forth? This breach be upon thee. Therefore his name was called Pharez. And afterward came out his brother that had the scarlet thread upon his hand, and his name was called Zara. Chapter 39. Joseph advanced in Potiphar's house, resisted his mistress's temptation. He is falsely accused and cast into prison. God is with him there. First verse say, And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. And he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not out he had saved the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, Lie with me. But he refused, and said unto his master's wife, Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand. There is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? And it came to pass as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her to lie by her or to be with her. And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house there within. And she caught him by his garment, saying, Lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. And it came to pass, when she saw that he had left his garment forth, that she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew unto us to mock us. He came in unto me to lie with me, and I cried out, and I cried with a loud voice.
And it came to pass when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me and fled and got him out. And she laid up his garment by her until his Lord came home. And she spake unto him according to this word, saying, The Hebrew servant which thou hast brought unto us came in unto me to mock me. And it came to pass, as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me and fled out. And it came to pass, when his master had heard the words of his wife, which she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled. And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound. And he was there in the prison. But the Lord was with Joseph and shewed him mercy, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison. And whatsoever they did there, he was the doer of it. The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. हम पढ़ेंगे जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक 38 अध्याय और 39 अध्याय BSI बाइबल में से। उत्पत्ति 38 39 अध्याय BSI बाइबल में से। 38 अध्याय। यहूदा और तामार। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुवा नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था और यहूदा ने तमार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपने भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि अपने भाइयों के सामने शेला भी मरे, अपनी बहू तमार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसलिए तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वह मर गई। फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लाम वासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नाथ को गया और तामार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नाथ को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एन्नाइम नगर के फाटक के पास जो तिम्नाथ के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा?
उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपने विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लाम वासी के हाथ भेज दिया कि वह रहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको न मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा, वह देवदासी जो एन्नाइम में मार्ग की ओर एक और बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी न थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी न थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया था, पर वह तुझे नहीं मिली। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया, पहचान तो सही कि यह मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है? यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र शेला से विवाह न किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। जब उसके जनने का समय आया, तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वह जनने लगी, तब एक बालक का हाथ बाहर आया और धाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई, जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था, उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया। 39 अध्याय पहले वचन से। यूसुफ और पोतीपर की पत्नी। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्र ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझे से कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ की से बातें करते रही
पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखी रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा ने के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, इन वचनों के अधीन हमको लाने के लिए तेरा धन्यवाद करते। इन वचनों के साथ हमें फिट एंड फिक्स कर और ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 9 चैप्टर 32 वर्स से 43 वर्स। जॉब 34 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 32 वचन से 43 वचन तक। अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय 4 अध्याय। हम अकेले में बैठकर पर्सनल टाइम में ये 2 साल का बाइबल रीडिंग, 2 years बाइबल रीडिंग पढ़ने का फैसला किए हैं। ये अकेले में इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने अंदर से खुद के जो जीवन के बातें हैं वो परमेश्वर हमें प्रकाशित करे और उस प्रकाशन पर हमारा जीवन बदलने का रास्ता हमको मिल सके, और परमेश्वर को भाता हुआ जीवन हम पवित्र बलिदान होते हुए, परमेश्वर को जीवता बलिदान होते हुए हम अपने आप को चढ़ा सके। ज़रूरी नहीं सभी ने ऐसे पर्सनल टाइम में ही पढ़ना है। आप अपने तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार से आप पढ़ना चाहो वैसे आप पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है कि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाना चाहिए, और निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ भी उठाना है इस बाइबल रीडिंग को करते समय। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।